grab your cup of coffee or cup of tea. But before that, I would like to introduce our next session, which is going to be by Mr. Sandeep Tandon, MD and CEO, to kindly come up on stage. Mr. Sandeep, can we have you on stage, please? Over to you, Mr. Sandeep. I've been lucky actually. The flight which I took off from Bombay, and flight which my colleague Surendra took off, it got cancelled. So it's been lucky that destiny was there to come over here. The only thing is that I will leave in half an hour's time because I have another flight, and I didn't realize this Hayat, which is from the other one. Okay, so let me talk about few things. You guys have been long in the market, okay, and following certain ways of doing things. We have our own way of doing things, okay. The way we look at data is everything is about data. It's no about personal feeling, मेरे को अच्छा लगता है, मेरा view है, Jeffries को अच्छा लगता है, CLSA का downgraded, doesn't matter, okay. What matters is your conviction, and conviction comes from data analytics, not from anything else. And that's the way we talk about dynamic style of money management. We have been promoting and educating how things have changed globally, particularly US. For me, the benchmark is US. That's the market which we look at. Because that is the mother of all exchanges. All other things are irrelevant in that sense on relative basis. Absolute basis is important, but is relevant. So that is the evolving country, how it has evolved over a period of time. And for everybody, you say, give your kids education on the analytics side, not from the market perspective. Every space, the analytics will play an important role. So quant is all about quantifying things. I will talk about very interesting perspective today from a perception analytics, okay? How perception analytics plays a role, okay? I'm sure you guys have heard us in the past also. So I'm going to talk about briefly about the perception aspect, okay? So I can run the presentation, that will be nice. Okay, let me talk for a few minutes, then I'll show you a few things. Now, in the market, we have always talked about earnings, how earnings moves the market, okay? And best of the analysts forecast earnings. Next 3 years earnings, next 5 years earning. Some people forecast even decadal views also, how the earnings will be in over a decade period of time. But ultimately, all earnings are based on certain assumptions. Certain assumption you take, this is the way rupee movement will happen, this is the way currency movement, the crude movement, or the particular sector related thing or company specific thing, okay? And that's the way we have living it. Now, when you talk about prices, ultimately when market moves, it expands from earnings perspective, it also expands from the multiple perspective. There will be situation where earnings remain, still keeps on growing, but valuation multiples are declining and you don't get the benefit. You make highest money when valuation multiple also spikes and earnings also spike. That is the deadliest combination which everybody wants to look at. Now, in the entire industry, I've also been part for 33 years now. Nobody talks about valuation multiple. Nobody forecasts valuation multiple, okay? What we do is about earnings. Again, earnings is also assumption based. If assumption changes or you're not able to, you have positive surprise or negative surprise. Both options are there. Now let's talk about how to address this issue of valuation multiples, okay? Because for most of the analysts is the balancing number. As an analyst, if I have to upgrade my targets, let's say earnings are moving by another 8-10% and you have a massive upgrade, what you do, you increase the multiple, 20 multiple now should trade at 25 or 30, and numbers are there, okay? So it's all about you, whatever DCF you play, you make minor changes, big changes happen in terms of output. Sell can become buy and buy can become a sell also, okay? Now, so for us, as an industry, we look at valuation multiple, let's say simple terms P or price to sales or any valuation EV, EBITDA, anything you look at, let's keep it simple, price to earnings, is a balancing number, okay? How you look at this, a balancing number, that's the way defined. Now let's take it to this concept to the next level, because criticizing anything is very easy, okay? Now look at the positive aspect, how we can construct. So at Quant, what we do, we talk about perception analytics. Instead of price to earning, we bring instead of price our perception, okay? Now we always say, what drive prices? Demand supply. What drive demand supply? Perception drive demand supply. What drive perception?
then you can go to sentiments and drill down and down. Okay, why we are talking about perception multiple or perception aspects are very important in our VLRT framework. Let me give you some perspective before we again come to the perception and how perception is going to so important for us going forward. Now, last 1 year, we have been hearing market is very expensive, okay? As a best of the strategists, best of the money managers, best of the smart money guys are worried. Yes, market is expensive. And what example we give? What happened in 2000, what happened in 2008, what happened in 2018. And some people have logical extension also. This was the P multiple, and then this is the big fall happened. Now, when you get everything in one dimension, you don't get answer. That's the reason last 1 year, people are wrong. Market made a new high today also, okay? So last 1 year, we are singing the same song, market expensive hai. When we look at one dimension, you don't get answer. When we bring second dimension, let's talk about liquidity analytics. Okay, what was the liquidity in 2000? Today's liquidity, global liquidity, few hundred times more. Lot of people remember Lehman moment, which was the quantitative easing phase started that period. And the quantitative easing was, people remember all central bank came together, the highest liquidity was generated that time because it was a very cohesive approach. Now, the liquidity was very high as compared to the past, answer is yes. But as of today also, global liquidity is few times of what was the Lehman crisis or the liquidity in November, October 2008. So it's very important to understand this. First dimension, valuations are expensive. Second dimension, come to liquidity. And even if we further break into good liquidity or bad liquidity, India good liquidities, which is productivity, efficiency, is actually rising. So very supportive of the market. So one dimension is not supportive, second dimension is very supportive. Come to the third dimension, which I'm going to extend it further, about sentiments. What was the sentiments? Let's say forget 2000, it was the unusual dot-com bubble. 2007-8 crisis or the Lehman crisis was the real crisis. India barely managed, okay? Okay, request for Hindi, my Hindi is not that bad, okay? So, एक dimension की हमने बात करी, valuation बहुत महंगा था, okay? If Hindi is fine, I can continue in Hindi also. Okay. So second dimension की बात करी, liquidity क्या थी? Okay. Liquidity बहुत ज़्यादा है आज उससे comparative. अब third dimension पे आते हैं, sentiments क्या था? 2007-8 का sentiment क्या था? We barely managed that crisis. We were technically difficult phase, currency front, yield front, and if you go back after 2000 Lehman crisis, post how we manage. Okay, we all remember what happened. And not only the companies, the market and the Indian economy was in a deep shit. Okay, and we came back from there. Now let's go back and check the perception what was there in 2007-8 versus 2024. जमीन आसमान का अंतर है. Okay, कहाँ हम survive कर रहे थे and today we are the leader. We are the emerge as a इंडियन मैक्रो में अगर देखें तो बेस्ट है. मेरे 33 इयर्स के करियर में कभी इतना अच्छा मैक्रो नहीं देखा मैंने. एब्सोल्यूट पे तो बहुत अच्छा है, रिलेटिव पे एक्स्ट्रॉर्डिनरी है. व्हेन टॉक अबाउट रिलेटिव टू यूएस, डेवलप मार्केट, इमर्जिंग मार्केट और इवन ओवरऑल अगर हम ग्लोबल इक्विटीज की बात करें कंबाइंड मैनर में तो इंडिया बहुत अच्छा है. तो इंडिया का परसेप्शन आज जो है वो इतना अच्छा परसेप्शन कभी भी नहीं था. अगर आप करंट गवर्नमेंट का मेजोरिटी नहीं मिला उसके बाद भी वन डे के इम्पैक्ट के बाद थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल, ऑल टाइम हाई. बेस्ट ऑफ द पीपल वॉमिटेड दैट डे कि हो गया, टॉप हो गया, खत्म हो गया सब कुछ. लास्ट एक साल से मैं टॉप की स्टोरी का गाना सुन रहा हूँ कि अभी टॉप हो गया, बहुत हो गया है. ओके, और मैं आपको इसलिए परसेप्शन की बात कर रहा हूँ कि जिसने ये गाना सुना वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक याद रखेगा कि व्हाट दे लॉस्ट. ओके, नाउ इट्स नॉट अ मार्केटिंग कैंपेन, लेट्स मेक इट वेरी क्लियर टू यू. ये मार्केटिंग गिमिक नहीं है. हम एक एनालिस्ट लोग हैं, एनालिटिकल फ्रेम पे बात करते हैं. अगर हम परसेप्शन पे आते हैं, अब थर्ड डायमेंशन हमारे बहुत फेवर में है. तो अगर वीएलआरटी का अगर हम पूरा मॉडल रन करें, 1/3 वेटेज वैल्यूएशन एक्सपेंसिव, 1/3 वेटेज लिक्विडिटी इन आवर फेवर, 1/3 वेटेज ऑन सेंटिमेंट्स रिस्क एपेटाइट आवर फेवर, 2/3 डेटा इज इन आवर फेवर, 1/3 इज नॉट. तो अपने को तेजी करनी है कि मंदी करनी है, वी हैव टू डिसाइड. 2/3 डेटा अपना पॉजिटिव है, 1/3 नहीं है, तो फिर हम तो मंदी नहीं कर सकते. दैट्स द रीजन अगर आप हमारा कॉल सुने तो लास्ट ईयर से हम लोग बोलते थे कि 2024 में 24,000 निफ्टी तो आएगा, वो आ गया. ओके,
और हम लोगों ने बहुत पहले इसकी बात करी थी. वी आर नॉट चार्टर्स टू टेल यू दैट लेवल ये आएगा. दिस इज द बिहेवियर नंबर्स की इतना दिखता था. ओके, वो किस मंथ आएगा उसका इंपॉर्टेंट नहीं है, और कितना 24,000 है कि 24,400 हुआ कि 500 हुआ कि 25,000, उसका इंपॉर्टेंस नहीं है. ट्रेजेक्ट्री इंपॉर्टेंट है. जब बोला था तो बहुत अक्टूबर में बहुत बड़ी मंदी थी, सबके दिमाग में इतनी मंदी बैठ गई थी कि टॉप हो चुका है. ओके, अब इसको हम क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आज इंडिया का जो परसेप्शन है बहुत अलग है. इसको हम प्योर मैक्रो डेटा पे बात कर रहे हैं, चार्ट की बात नहीं कर रहे हैं. ओके, प्योर मैक्रो. बहुत लोग हम लोग को अंडरस्टैंडिंग को टेक्निकल एनालिसिस से लिंक कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. बेस्ट ऑफ द चार्टर्स कैन नॉट फोरकास्ट व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, ओनली द मैक्रो पीपल कैन टेल यू. सो अगर हम मैक्रो का डेटा देखें तो इंडिया बहुत यूनिक सिचुएशन में है. इस तरह की अपॉर्चुनिटी लाइफ में शायद लिमिटेड टाइम्स आती है. वो अपॉर्चुनिटी है. मैं 2-3 साल से बोलता हूँ, 21 से बोलता हूँ करीब करीब 2020 के बाद से, कि डिकेड हमारा है, हाफ सेंचुरी हमारी है. इसलिए इंडिया बाय ऑन डिप्स. अगर आप इतना अच्छा सिचुएशन मल्टीपल ग्राउंड्स पे कभी नहीं देखा है. ओके, इलेक्शन हारने के बाद भी, अगर मेजोरिटी नहीं आने के बाद भी, इफ मनी इज कमिंग बैक एंड मार्केट्स एट डिफरेंट लेवल, लोग भूल गए. बट आज भी लोग फियर के साथ जी रहे हैं. बैक ऑफ जितना स्मार्ट आदमी हो, जितना पढ़ा लिखा आदमी हो, उसको उतना ज़्यादा स्ट्रेस है इस समय. ओके, और ये डिकेड रिटेल का है. मैं हर कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग्स में बोलता हूँ कि हर बुल मार्केट का एक लीडर होता है. ओके, वो क्यों है उसका मैं मैथमेटिक्स है इसके आपको समझाता हूँ बहुत सिंपल टर्म्स में. जब 2000 का बुल रन स्टार्ट हुआ था इंडिया में, जून 2003 में स्टार्ट हुआ था, आफ्टर .com बबल, ग्लोबली समवेयर जून 2003 से स्टार्ट होता है. उस समय एफआईएस इंडिया में आए थे. लोग सिर्फ यूटीआई एलआईसी को पहचानते थे, कोई म्यूचुअल फंड को नहीं पहचानता था तभी, कि ये म्यूचुअल फंड आज जो साइज पे हम लोग हैं, वो इंडस्ट्री इतनी छोटी थी. क्योंकि म्यूचुअल फंड मींस यूटीआई, इंस्टीट्यूशन, और म्यूचुअल फंड नहीं बोलते थे, इंस्टीट्यूशन बोलते थे, डीएफआई. ओके, कि एलआईसी है कि बैंक्स हैं. वो उस बुल रन का लीडर कौन था? ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा था? एफआईएस थे. फर्स्ट टाइम हमने कैपिटल, जैनस, टी. रो. प्राइस, इस सब के नाम सुने, फिडेलिटी. इससे पहले मैं भी 92, 93 उस जमाने से, हर्षद के टाइम से बाजार में, मैंने कभी वो नाम भी नहीं सुने थे. ओके, वो लीडरशिप में थे, वो ड्राइविंग सीट पे थे, और उन्होंने उस बुल रन को कैपिटलाइज किया सितंबर अक्टूबर 2007 तक. दे वर इन ड्राइविंग सीट, दे मेड टन्स ऑफ मनी. .com बबल हुआ, अपना लीमन क्राइसिस हुआ. अप्रैल 2009 से वापस मार्केट में रैली आई, जो हमने लिखा भी था उस समय. उसका बुल रन का लीडर कौन था? ड्राइविंग सीट में अल्ट्रा एचएनआईज, फैमिली ऑफिस, ओके, और एचएनआईज प्लेयर. मासेस रिटेल तब भी नहीं थे. दे मेड टन्स ऑफ मनी. ऑल मल्टीपल एआईएफ्स, पीएमएस वर बॉर्न इन दैट पीरियड. उस पीरियड में अगर आप गौर करोगे तो लॉट मेनी मेड वेरी बिग मनी, बट दे वर पेशेंट, दे डिड अ गुड जॉब. अब तीसरा बुल रन जब आता है, क्योंकि मैं परसेप्शन से लिंक कर रहा हूं, इसको मैं आगे भी लेके जाऊंगा. तीसरा बुल रन आता है पोस्ट कोविड, अप्रैल 2020 से, जहां बेस्ट जितना बड़ा आदमी था उतना उसको डर था. जिसको खोने का कुछ नहीं था उसने दांव लगाया. क्यों लगाया? क्योंकि उसके पास टाइम था, घर बैठा हुआ था, उसकी सेविंग्स थी बहुत ज़्यादा, कहीं कोई एक्सपेंडिचर नहीं था, उसने मार्केट में लगाया. उसका M2M बहुत पॉजिटिव रहा, इसलिए वो रिटेल इन्वेस्टर आज भी खड़ा है. और इस चीज़ को मैं 2020 से बोलता हूँ कि इस बुल रन का लीडर रिटेल है. और रिटेल का जो साइक है ना, उसका बेस बहुत बड़ा है. एफआईएस लिमिटेड थे, 25-30 आए थे. अल्ट्रा एचएनआई कितने थे? 50-60 होके 10-1200 हो गए. वो कोई 50,000 एचएनआई तब भी नहीं थे. आज भी ऐड करोगे तो लाख के ऊपर रियल एचएनआई नहीं मिलेंगे. अब ठीक है, वो लिस्ट अभी बहुत बड़ी हो गई, वो अलग चीज़ है. जब स्टार्ट हुआ था 2000 में तो इतने ही लोग थे. मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ आपको. ओके, अब रिटेल का बेस आप हमसे ज़्यादा समझते हो, कितना बड़ा रिटेल का बेस है, कितना बड़ा हमारा पॉपुलेशन है, कितना बड़ा सेविंग है. आज ये लीडर है, और इसका जो बुल रन है वो मल्टी डिकेडल बुल रन होगा. ये 8-10 साल में ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि उसका जो वेल्थ बना है वो बहुत मीनिंगफुल है, और उसने वो वेल्थ का अंडरस्टैंडिंग समझा है कि ये कैसा पैसा बनता है. उसको चस्का लग गया है कि ये अपॉर्चुनिटी है. और उसके साथ आप देखो हमारा मैक्रो, खाली ये नहीं एक थीसिस है, इंडिया का मैक्रो इंप्रूव हो रहा है यूनिक सिचुएशन में. ओके, जो भी हो, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन टू क्रिटिक, बट आई थिंक मिस्टर मोदी डिड अ फैंटास्टिक जॉब
is one of the smartest and best brand manager ever we have. Courtesy 1% इंडिया का परसेप्शन बहुत चेंज हुआ और जो स्टेप्स लिए गए वो इरिवर्सिबल है. ओके कोई नया लीडर आ जाए, कोई नई पार्टी आ जाए, डजंट मैटर. इंडिया का लीग चेंज हो चुका है. अपने दिमाग से हमको निकालना चाहिए कि अगर ये मेजोरिटी नहीं आया तो क्या हुआ, अरे स्टेट में क्या होगा. हर इलेक्शन के बाद मार्केट मूव टू, क्योंकि क्या चेंज हो गया, एक्चुअल डेटा बहुत चेंज हो गया. जो हम लोग मार्केट में देखते हैं ना, मार्केट क्या चलता है, नैरेटिव पर चलता है शॉर्ट टर्म में, रियलिटी बहुत अलग होती है. तो अगर हम लॉन्ग टर्म की इस पिक्चर की बात करें तो समथिंग बिग हैज चेंज फॉर इंडिया. अगर ये दिमाग में हम क्लैरिटी रखें, और हम लोग मैक्रो के हिसाब से बता रहे हैं, ये 30 साल का बुल रन है. 2047 तक हमारा डेमोग्राफिक साइकिल पीक आउट होती है. कोई बुल रन ऐसे नहीं जाने वाला है. ओके उस थीसिस में कोई भी लीनियर मूव्स नहीं मिलेंगे आपको. शार्प फॉल भी मिलेंगे, शार्प करेक्शन भी मिलेंगे, बट एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये मेरा डायरेक्शन है मार्केट का. उतना बड़ा व्यू है तो आपको मार्केट से बाहर नहीं होना है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए. आप सेक्टर शिफ्ट कर सकते हैं, स्टॉक रोटेशन कर सकते हैं, थीमेटिक से फ्लेक्सी में आ सकते हैं, फ्लेक्सी से कहीं और जा सकते हैं, दैट डिपेंड. एंड उस अप्रोच में हाउ यू कैन रिड्यूस द रिस्क. ओके ये जो पूरा बिजनेस है, हम जिसको परसेप्शन की बात करते हैं, जो हम लोग एनालिटिक ढूंढते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, वी आर इन द बिजनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. रिटर्न्स अ बाय प्रोडक्ट. आप रिटर्न्स के पीछे मत जाओ, रिस्क को मैनेज करो. लार्जर थीसिस समझ में आ गई है तो रिस्क खाली मैनेज करना है. अगर लार्जर पिक्चर खराब है तो उसका कुछ नहीं हो सकता. बहुत सिंपल सा मैथ्स है ये. तो हम लोग अगर थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की जब बात करते हैं, विनिंग स्ट्रीट कीप ऑन आइडेंटिफाई करो और पैरेलली रिस्क को मैनेज करो, यू विल मेक मनी. एंड दिस व्हाट वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड right from 2018 when we came and when we started accepting public money in VLRT framework in March 2020. We have been a massive outlier in the market. Every category we lead. Okay क्यों? We are doing some black box magic? No, we are an analytical firm. हमको ये समझना है कि हमको extreme inflection points पे कैसे मार्केट को आइडेंटिफाई करना है, और वो डेटा समझना इम्पॉर्टेंट है. उसके लिए थोड़ा पेशेंस लगता है. आपको लार्जर पिक्चर की क्लैरिटी दिखती है तो हम उसको बहुत अच्छे से प्ले करेंगे. अगर हम ये डर से जिएंगे ना, जो सब लोग समझा रहे हैं तो बाजार कभी टॉप होने वाला है, कब का टॉप हो चुका है. ओके ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं. वो 1 साल से वो लोग हार चुके हैं. ओके अगर इस चीज को हमको मैक्रो डेटा से समझना है, नंबर से समझना है, मैंने बोल दिया ऐसा नहीं है. ओके लोगों का क्या है, म्यूचुअल फंड वालों को तो पैसा चाहिए होता, उनका बिजनेस है तो तेजी समझाएंगे. ओके उस एंगल से नहीं, हमें एक वेल्थ के एंगल से बात करना है कि एक मैसिव अपॉर्चुनिटी. हर डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हैं, बॉस आप लोग टाइमिंग पे फोकस नहीं करो. इन्वेस्टर को बोलते हैं, इन्वेस्टर बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढे जो उसको हैंड होल्ड करे. ना इन्वेस्टर टाइम करेगा, ना डिस्ट्रीब्यूटर टाइम करेगा. टाइमिंग का काम हम जैसे लोगों पे छोड़िए, क्योंकि टाइमिंग इज अ एनालिटिकल टूल फॉर अस. इट्स अ रिस्क मिटिगेशन. हर आदमी टाइमिंग करेगा. रिटेल वाला सोचे मैं टाइमिंग कर लूँ, डिस्ट्रीब्यूटर सोचे मैं टाइमिंग कर लूँ, तो और हम लोग तो करते ही करते हैं, तो सवा सत्यानाश होने वाला है फिर. ओके इसलिए क्या अपॉर्चुनिटी देखनी है कि हमें किस तरह से अपना माइंडसेट को मेंटेन करना है. एक लाइफ की टर्निंग पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी है, जैसे यूएस में हुआ, उसके बाद चाइना में हुआ. इंडिया में अभी हमने चाइना प्लस देखा है, जर्मनी प्लस इज जस्ट स्टार्टेड, जापान प्लस विल बी वेरी बिग. तो उतना बड़ा हम लोग जब पिक्चर देख पाते हैं, ओके तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि इंडिया का जो परसेप्शन एनालिटिक्स की मैं बात करता हूँ वो चेंज हो गया है. और एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म व्यू. एंड व्हाई पीपल लाइक अस विल सक्सीड, क्योंकि हम सेक्टर रोटेशन, स्टॉक रोटेशन फास्ट कर जाते हैं. ओके हम लोग को अपॉर्चुनिटीज की तरह डील करना. अब हम वापस आते हैं 2 मिनट परसेप्शन एनालिटिक्स के ऊपर. जब हम परसेप्शन देखते हैं तो परसेप्शन का कहीं कोई स्पाइक हुआ कि यूफोरिया हुआ, तो हमें एब्सोल्यूट में भी देखना है और रिलेटिव में भी देखना है. ओके हर चीज लाइफ में एब्सोल्यूट पे इंपॉर्टेंस नहीं होती है. ओके ये पूरा जो दुनिया है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम करती है. सब कुछ रिलेटिव है. ओके रिटर्न्स आर ऑल्सो रिलेटिव. तो ये कंसेप्ट आपको दिखाना है. वो चार्ट के एंगल से मत चले जाना कि RSI में देख लेता हूँ. रिलेटिव इज नॉट दैट टर्म. ओके absolute is as bizarre or as bogus concept it can be, you know, it is abstract terminology. Okay हम लोग क्या निकालते हैं, फेयर वैल्यू. कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकालता ना. 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिपोर्ट दोगे, 4 लोगों का अलग एवरेज आएगा, वो फिर एवरेज के हिसाब से मैनेजमेंट कॉल लेगा. हर 500 एनालिस्ट हैं तो 500 लोगों का सब नंबर्स अलग होंगे, क्योंकि वो कुछ एजम्पशन बेस्ड, एजम्पशन चेंज, नंबर चेंज.
तो एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए आपको समझाए कि हमारा एब्सोल्यूट परसेप्शन इंप्रूव हुआ है, रिलेटिव इज एक्स्ट्रॉर्डनरी। अगर ये डेटा को मैं एक्स्ट्रापोलेट करके आगे ले जाऊं 10 साल 20 साल, इसको मल्टीपल साइकिल से लिंक करूं और डेमोग्राफिक से लिंक करूं, सो उतनी बड़ी तेजी का व्यू बनता है। ये एक पर्सपेक्टिव हमको इधर बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए कि दैट समथिंग हैज चेंज फॉर इंडिया एंड आर वी विलिंग टू लुक फॉर दैट। डोंट गेट एक्साइटेड कि बस आज 24,000 ब्रेक हो गया तो अभी वी शुड गेट सक्ड इन। Money should not be removed. You can do stock rotation, sector rotation, scheme rotation, what is up to you, okay? But एक larger thesis पे हम बात करते हैं तो how it plays out. Let me show you few things. अब हम जब dynamic style of money management की बात करते हैं, क्या हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम जो इतने साल से चला रहे हैं static style, अगर वर्ल्ड इतना डायनेमिक है, रोज चेंज हो रहा है, रोज डेटा पॉइंट्स बदल रहे हैं, तो हमारा मनी मैनेजमेंट स्टाइल क्यों स्टैटिक होगा, बाय होल्ड एंड फिट टाइट क्यों होगा? वो होना ही नहीं चाहिए। सब कुछ चेंज हो रहा है, आपको पता है चेंज हो गया, लेकिन हम अपना पोर्टफोलियो नहीं चेंज करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे? अगर एनवायरनमेंट चेंज हो गया। वी आर स्टूडेंट ऑफ एडेप्टिव एसेट एलोकेशन थीसिस। पूरा एनवायरनमेंट को समझते हैं मैग्रो, उसको हिसाब से अडेप्ट करते हैं एंड देन मूव अप करते हैं। जो फूड आप दिल्ली में खा सकते हैं, मैं बॉम्बे में अगर ये खाऊंगा तो मेरे को इंडाइजेशन हो जाएगा। ओके, तो आपका जो अटायर है और आपका जो फूड हैबिट्स हैं, आप किस रीजन में रहते हो, किस क्लाइमेट कंडीशन में हो, किस एनवायरनमेंट में बिल्ड बड़े बड़े हुए हो, उसका इम्पैक्ट होता है। करेक्ट? हर आदमी पोर्टफोलियो, आई एम अ वैल्यू इन्वेस्टर, आई एम अ ग्रोथ इन्वेस्टर, आई एम अ डीप वैल्यू इन्वेस्टर, आई एम ग्रोथ एट एनी प्राइस, आई एम अ टेकी इन्वेस्टर। दैट्स नॉट द वे वी डिफाइन। वी आर अनकंस्ट्रेन्ड फंड हाउस। व्हेन आई से अनकंस्ट्रेन्ड, वी आर स्टाइल एग्नोस्टिक, मार्केट कैप एग्नोस्टिक, थीसिस एग्नोस्टिक। हम प्योर अपॉर्चुनिस्ट हैं। अपॉर्चुनिटीज क्यों? हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ढूंढते हैं कि वेयर एवर इज द बेस्ट रिस्क एडजस्टेड अपॉर्चुनिटी, उसको प्ले करना है। अटैचमेंट के साथ स्टॉक में नहीं देना है। ओके, हम लोग सब को सिखाया जाता है स्टॉक से अटैचमेंट नहीं होना है, लेकिन वो हो जाता है। ये सेक्टर तो मेरे को बहुत पुसाया है, इफ माई हिंदी इज राइट, कि ये तो मेरे को बहुत रिटर्न देके गया है, ये तो लॉन्ग टर्म ही है। ओके, इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म है, एसेट क्लासेस इक्विटी ऐसा लॉन्ग टर्म है, स्टॉक और सेक्टर कोई लॉन्ग टर्म नहीं होता है। आपको अपॉर्चुनिटी, जैसे एग्जांपल देता हूँ, इंफ्रा बहुत अच्छा लगता है, इंफ्रा में बहुत बड़ी तेजी है। अगर आप उसमें पूछोगे तो कैपिटल गुड्स की साइकिल खत्म हो रही है, आउट परफॉर्मेंस की साइकिल, प्राइस की नहीं। मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिया। हम क्या ढूंढते हैं? वो सब स्टॉक सेक्टर ढूंढते हैं जो एडमायर टेरिटरी में होते हैं और निगलेक्टेड टेरिटरी में। एडमायर वालों को बेचते हैं, निगलेक्टेड वालों को लेते हैं। और उस गेम में प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स थीसिस, आज एग्जाम्पल के तौर पे समझे, रिलायंस ऑल टाइम हाई, कुछ न्यूज़ आया, अगर आप गौर करोगे तो लास्ट 6 महीने से हमारी टॉप मोस्ट होल्डिंग है रिलायंस। और बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि बाकी लोग हाउसेस का इतना नहीं है, आप 10-10% पे चला रहे हो, ओके, जो हमको मैक्सिमम अलाउड है। हमको डेटा पॉइंट दिखता था। ओके, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का क्या है? यू कनेक्ट द डॉट एंड सी व्हाट इज द फ्यूचर, एंड 72% टाइम्स वी गेट इट राइट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एग्जाम्पल, वी आर द फर्स्ट हाउस टू सेल HDFC। ओके, जब कुछ इश्यूज हुए थे, वी वर द फर्स्ट टू एग्जिट। लास्ट मंथ वी रीबिल्ड पोजीशन, $1 बिलियन का पोजीशन में रील्ड किया। हमारी फैक्ट शीट में आपको डेटा दिखता है, आज वो 20% ऊपर एक महीने के अंदर। सो दिस इज व्हाट, इफ यू कैन आइडेंटिफाई द इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, एक्सट्रीम इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स पे आई एम अ बायर, एक्सट्रीम इन्फ्लेक्शन पॉइंट आई एम अ सेलर। दैट्स द वे द क्वांट म्यूचुअल फंड वर्क्स। ओके, वी आर नॉट चेजर। लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड, अरे हम लोग तो मोमेंटम ट्रेड कर लेते हैं। नो, हम बहुत अर्ली स्टेज पे लेते हैं और राइट टाइम पे निकल जाते हैं। जब यूफोरिया दिखेगा तो हम निकल, हमको कोई शर्म नहीं आती बेचने में। कोई बाइनरी नंबर है हम लोगों के लिए, इधर वी लाइक इट और वी हेट इट। वी कांट से थोड़ा कम कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, अंडरवेट, मार्जिनल। वी आर प्योर एक्टिव मनी मैनेजर, आइदर वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट। इन बिटवीन कुछ नहीं होता है कि पार्शियल बुक कर लिया, पार्शियल ऐड कर दिया। ओके, खराब है तो दूसरा ढूंढो, क्योंकि रिलेटिव अपॉर्चुनिटी का गेम है ना। ओके, और हमको इंडेक्स मिमिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो बैकग्राउंड में जब हम लोग बोलते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग, एडिंग अल्फा एंड सब्सट्रैक्टिंग बीटा, हम सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखने की कोशिश करते हैं। अब 2 मिनट इस पे आते हैं, परफॉर्मेंस पे। अगर आप गौर करेंगे, फोकस फंड ऑनवर्ड्स, ऊपर से एक्टिव से फोकस फंड, ये हमारी पुरानी स्कीम से, बाकी नई स्कीम से। ओके, ये 22 तारीख तक का डेटा है, लास्ट 4 दिन का डेटा नहीं है इसके अंदर, बिकॉज
नाउ व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, हमारा क्या आउट परफॉर्मेंस क्या है, फ्रॉम 350% टू 900% रिटर्न फ्रॉम मार्च लोस्ट इन 2020। रिलेटिव कंपैरिजन सब सेम है, 300 से 900% का रिटर्न है, 350 से 900%, पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रॉर्डनरी। रिलेटिव रिटर्न्स उससे भी अच्छा है, अगर आप निफ्टी से रिलेटिव रिटर्न देखेंगे 150 से 700% का आउट परफॉर्मेंस। लोग 10-12% की आउट परफॉर्मेंस में सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ 700% की आउट परफॉर्मेंस है। कैसे आती है? मैजिक नहीं आता है, ब्लैक ब्लॉक्स रन नहीं करते हैं, एनालिटिकल फॉर्म है। ये डेटा पॉइंट्स अच्छा है, जो हमको सेटिस्फैक्शन देता है और जो आपको समझना चाहिए, जो हम लोगों को गलत चीज़ें कुछ सिखाई गई हैं, अरे चर्न है, अरे ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, बीटा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। कोई चीज़ अगर आप पी रेशियो को आइसोलेशन में देखेंगे तो उसकी वैल्यू नहीं है। पी किस कंपनी का ज़्यादा होता है? जिसका रिटर्न मैट्रिक्स अच्छा होता है। तो आपको पूरी मैट्रिक्स देखना है, इसलिए हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखना है। एंड व्हाट इज अवर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न? वेदर इज शार्पे, सॉर्टिनो, जेंसन अल्फा, वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। We lead the charts in all the categories which we operate, and that is our achievement of dynamic style of money management. Okay, it's not about हमने आउट परफॉर्मेंस दी है, हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क एडजस्ट रिटर्न दिया। वी आर very conservative house. Lot of people think quant is very aggressive house. We are most conservative house. We manage risk and we manage risk better. It means if my risk adjusted returns are better, कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न दिया है। दैट इज द व्हाट रिस्क एडजस्टेड डेटा। ये जो हम लोग यूट्यूबर पे सुनते रहते हैं, 4 चीजें उनको सिखा दी गई, उसी का गाना गाते रहते हैं लोग। चर्न ज्यादा है, बीटा ज्यादा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है। अगर बीटा ज्यादा है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो मेरा आपको बोलता हूँ 8वीं क्लास का बच्चा आपको बता देगा ये क्या है। हम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। अगर रिस्क इतना सिंपल होता, okay, divergence can be positive, divergence can be negative, we can get into forward beta or lot of statistical aspect which I am not getting into it. Okay, what is important to understand, हमने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कैसे बनाया, क्यों बनाया? एक्सट्रीम इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हमें सेलर, एक्सट्रीम इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स पे हम बायर, एंड वी आर अहेड ऑफ द कर्व। 2 एग्जांपल दिए मैंने आपको, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। इससे पहले आईटीसी था, 9 और 10% होल्डिंग होती थी हर फंड में। स्मॉल कैप में भी आईटीसी था, वो बेचा, रिलायंस खरीदा, वहां से रिलायंस ने मेरे को 50% रिटर्न दे दिया। ओके, आईटीसी 35% डाउन है, 30% डाउन है मेरे भाव से बेचने के। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आईटीसी बढ़ेगा नहीं? बिल्कुल बढ़ेगा। रिलेटिवली मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली, वी प्ले दैट गेम। सो एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट, रिलेटिव इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, बहुत लोगों को ये लगता है क्वांट इज बॉर्न इन बुल मार्केट। ओके, ये तो बुल मार्केट के प्रोडक्ट हैं, बुल मार्केट में बहुत अच्छा किया, देखेंगे बेयर मार्केट में कैसा करते हैं। तो उसका एग्जांपल दिखाते हैं। 2021 बेंचमार्क रिटर्न से हमारा रिटर्न देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। 2022 कैलेंडर ईयर है, 2022 में मेजॉरिटी ऑफ द इक्विटी स्कीम्स हैव डिलीवर्ड नेगेटिव रिटर्न इन द इंडस्ट्री। Quant was the only house where we have delivered 10.5 to nearly 28% return. Not a single scheme has delivered negative return, including small cap. Small cap का benchmark return is minus 1.5%. We are 10.5%. तो which is again a myth. Okay. दूसरी चीज एग्जाम्पल लेते हैं, 2 मिनट इधर आते हैं। BFI सेक्टर आज आप 1 महीने का रिटर्न भूल जाइए। लास्ट 6-8 महीने से BFSI सेक्टर नहीं चला, एंड वी वर ग्रॉसली अंडरवेट इन दैट सेक्टर। राइट टाइम पे हमने वापस पार्टिसिपेट किया, दैट्स अ डिफरेंट इशू। जून 2023 में हमने अपना BFSI फंड लॉन्च किया, और फर्स्ट 6 मंथ्स में इंडेक्स ने, डिपेंड करता है आप कौन सा BFSI का इंडेक्स, आइदर -2% और ±2% रिटर्न दिया। उस पीरियड में हम लोगों ने 64% का रिटर्न दिया BFSI का। ओके, इंडेक्स ने नेगेटिव, ये चलिए 2% मांग लेते हैं, तो फिर भी 62% का आउट परफॉर्मेंस है। उतना तो रिटर्न निफ्टी ने नहीं दिया, उतना रिटर्न तो निफ्टी स्मॉल कैप ने नहीं दिया उस पीरियड में जितना BFSI ने दिया हमारे। क्यों? फंड नेगेटिव। टेक देख लीजिए, ओके, उसका आप एनुअलाइज रिटर्न निकालिए, देखिए कि आपको देखेगा BFSI का 18.94 वर्सेस 72। अगर 19% का एनुअलाइज है तो हमारा 72% है। कोई भी कैटेगरी निकाल के देखिए, हमने मल्टीपल थीमेटिक फंड लॉन्च करे, और हमने बहुत एग्रेसिवली बोला था मई 2023 से सितंबर 2022 में इंडिया का रिस्क एपेटाइट बॉटम आउट हो जाएगा। 21-22 अक्टूबर को हमने मंथली कॉल करी थी, एंड वी से रिस्क ऑन रैली ऑन द होराइजन। हाउ इट प्लेड आउट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू लुक एट द बेंचमार्क, लास्ट कॉलम देख लीजिए, टाइमलाइंस के, हाउ वी हैव डिलीवर अक्रॉस ऑल थीमेटिक फंड, डबल से ज्यादा रिटर्न है बेंचमार्क से। ओके, नाउ
वो इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। अब एक डेटा पॉइंट्स और बताते हैं जो मैं लास्ट को कवर करूंगा रिस्क के एंगल से। हाउ वी मैनेज रिस्क बेटर देन द इंडस्ट्री। वाई वी आर, बिकॉज वी आर रिस्क मैनेज। मैंने 10 साल प्रॉप चलाया है, रोज 5-7 हजार करोड़ का वॉल्यूम करते थे, 200-500 करोड़ का नहीं। ओके उतना बड़ा वॉल्यूम करते थे, 380 ट्रेडर मेरे यहाँ काम करते थे मेरी लीडरशिप में। 10 साल वो प्रॉप चलाया, एक साल भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया, एक क्वार्टर भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। और लीमन क्राइसिस में हाईएस्ट रिटर्न बनाया था, 18 दिन में 18 करोड़ रुपए बनाए थे। दैट इज द जेनेसिस ऑफ क्वांट। आपको एक रिस्क का समझ में आएगा, हाउ वी मैनेज रिस्क। ओके 2008 में मैंने क्वांट स्टार्ट किया था, मेरा पोर्टफोलियो वाज जीरो। मार्च में पोर्टफोलियो जीरो था, डीमैट स्टेटमेंट कभी आपको दिखा दूंगा। ओके सब बेच के कंपनी में पैसा लगाया था। टाइम वी बिल्ड द कंपनी। टाइमिंग का धंधा है ये। टाइमिंग इज अ रिस्क मिटिगेशन टूल। टाइमिंग इज नॉट अ ट्रेडिंग टूल, टाइमिंग इज अ एनालिटिकल टूल। जो हमको ये सिखा दिया गया है ना, टाइमिंग कोई नहीं कर सकता, टाइम तो करना ही नहीं चाहिए, टाइमिंग इज रॉन्ग, टाइम इन द मार्केट इज बेटर। यस, टाइम इन द मार्केट इज गुड, दैट्स योर एक्सपीरियंस, बट टाइमिंग इज एवरीथिंग। एज अ स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट वी हैव बीन टॉट राइट प्लेस राइट टाइम, यही सिखाया गया है। ओके और सबको यही करना भी चाहिए। अगर आप रिस्क मैनेज नहीं कर सकते देन यू शुड नॉट बी इन दिस बिजनेस। दैट्स वेरी वेरी वोकल अबाउट इट। रिस्क इज द मोस्ट वाइटल। अब हम आपको एक डेटा दिखाते हैं, ये हमारा परफॉर्मेंस का शीट है। परसीव रिस्क, नोन रिस्क, अननोन रिस्क। मैं 2 मिनट इस पे बात करूंगा। ओके आई ऑल्सो हैव 5 मिनट्स ओनली। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग एपिसोड होता है। ओके अदानी स्टॉक कोलैप्स्ड, वी वर 6-7% of our portfolio, which is the public information. The damage was not Adani Group companies in our portfolio, because social media was writing everything on that only. The collateral damage was PSUs. We were 20-25% PSU. Now 15 months later, you realize we were 15 months ahead in that taking PSU call. From a risk perspective, we manage our risk. If we could have kept the entire portfolio of Adani as well as PSU, what was original in January 2023, ये performance 50% और ऊपर होती। We have calculated this for around 47%. Okay? This is what is important, but risk manage किया। So March 2020, when episode happened, we lost money and we were the worst performer in March 2024 or 23. Worst means last पे थे, हर category में we were the last, because 6-9% का difference था, बड़ा number होता है। July 2023 second quarter, we were the last quartile. Okay, last से last quartile तक आए। January 2024 we were number 1 in all the categories. Okay, that is risk management. जब risk लेना होता है, फ्रंट फुट पे खेलना होता है। रिस्क ऑन पीरियड में, रिस्क ऑफ में लाई लो। अक्टूबर से हम लोगों ने सितंबर से रिस्क ऑन पीरियड में कैपिटलाइज किया। 4 महीने वो सब रिकवरी करी जो 6 महीने में तोड़ी थी। बट टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। ओके सो फ्रॉम द वर्स्ट परफॉर्मर वी बिकेम द बेस्ट परफॉर्मर। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट परसीव रिस्क। मैंने अपने लास्ट कॉल ली थी, उसको मैंने परसीव रिस्क का समझाया। परसीव रिस्क इज इन बिटवीन नोन एंड अननोन। Known risk we can quantify. For lot many people, known risk is also unknown, like interest rates. आप कैसे क्वालिफाई करते हैं? हम लोग क्वांटिफाई करते हैं, लिखा भी है, बुक में लिखा था, पढ़ेंगे हमारी बुक्स तो आपको मिलेगा कि हाउ 2021 ऑनवर्ड्स इन्फ्लेशन विल कम बैक। 10 साल पहले लिखा था। तो मैक्रो डेटा से हम लोग साइकिल एनालिस्ट हैं, एनालिटिकल फॉर्म में फोरकास्ट कर सकते हैं। बाकी लोगों के लिए अननोन होगा, हमारे लिए वो नोन है। अननोन नहीं फोरकास्ट करते, बट अननोन रिस्क को मैनेज कैसे करते, वी डिमॉन्स्ट्रेटेड जस्ट नाउ। अब परसीव रिस्क, व्हाट इज परसीव रिस्क? आपके दिमाग में कोई चीज बैठा दी गई है, नैरेटिव कुछ चल रहा है। मैंने कल उसको बहुत बड़ा एड्रेस किया था 2 दिन पहले। परसीव रिस्क क्या है? परसीव रिस्क मटेरियलाइज नहीं हुआ, व्हाट इज योर लॉस? ओके वो इंपॉर्टेंट है। वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे। परसीव रिस्क, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ परसीव विल बिकम एक्चुअल रिस्क? So that level of work we do on a lot of data points, since time is very limited with me. The only point I am trying to explain to you, all of you, please don't try to time from your investor perspective कि अभी निकाल लेते हैं बाद में डालेंगे। ये 30 साल की अपॉर्चुनिटी है, रिग्रेट करोगे। पहला कंक्लूजन। दूसरा, टाइमिंग हम जैसे लोगों पे छोड़ देना चाहिए कि हम लोग उसको अच्छा करते हैं। हम लोग $1 मिलियन डेटा एनालिटिक्स पे खर्चा करते हैं, हमारी टीम होती है, हमारा एनालिसिस है, तो वी आर अहेड इन द कर्व एंड वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड इन आवर परफॉर्मेंस। तो शोकेस, बाकी
बाकी की तो ज्ञान वाली बातें हैं, कुछ उसका कुछ फ़ायदा है नहीं बात करने का. End of the day is performance. This business is all about performance and performance. Risk-adjusted performance, not performance or outperformance in isolation. Third most important thing, this is a mind game. Most of the time get capitulated at the bottom of the cycle, and that's a classic bottom. And most of the time are sucked in at the peak of the cycle. If you can balance this in your personal life as well as market, you will be better advisor and you will be better distributor. And please go all out and raise money. Unka wealth creation opportunity, you should be partner in their wealth creation journey. So your own confidence should be high first. If your own confidence is low कि बाजार का तो बहुत टॉप बन गया, लोग साल भर से समझा रहे हैं, ओके? उससे पहले भी समझा रहे थे. तो we are not marketing guys कि जब डेट मार्केट इक्विटी कुछ नहीं हो डेट बेच लेते हैं, डेट का टैक्सेशन चेंज हो गया तब इक्विटी बेच लेते हैं. दैट्स नॉट व्हाट वी डू. वी आर प्योर एनालिटिकल हाउस. जो डेटा दिखता है वो हम बोलते हैं. सो वी से ऑब्जेक्टिविटी इज अ रिलीजन एंड डेटा इज गॉड. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, Mr. Sandeep. I would request you to kindly stay back, and I would request Mr. Manu to kindly felicitate our speaker. Can we have a big round of applause for Mr. Sandeep Tandon, please? Thank you, sir, for that very interactive discussion. We know you are crunched on time. आपके पास time नहीं है, but आपको honor किए बिना हम आपको नहीं जाने दे सकते. Thank you so much, sir. And जैसा कि आपने कहा that you talk straight. It's not about what you're saying. It's not about what you're speaking. It's about how you're speaking it. So thank you so much for that very, very interesting presentation.